Hello everyone, welcome back. I am Anushri Rai. In this video, we will discuss BRS, that is Bank Reconciliation Statement. Many students find difficulty in preparing a bank reconciliation statement. But हम इस वीडियोस में और आने वाले वीडियोस में हम इस टॉपिक को बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को ऐसे समझेंगे कि आपको इससे ईजी और कुछ नहीं लगेगा और एग्जाम में भी आप इस टॉपिक में इस क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स मिलेगा. सो लेट अस बिगिन. See, every business firms, they open a current account with the bank. The bank, they issue a checkbook, passbook to the firm. Now this, what is the passbook then? Then the passbook is the record of the firm's account, like the withdrawal, the deposits and the balance of the firm in the books of the bank. On the other side, every firm, they are also maintaining a cash book in their books, in which they are recording their withdrawal, deposits and the balances. So there are times when we see that this balance as per the cash book and the balance as per the passbook, they do not tally, and that is a reason where the bank reconciliation statement comes into the picture. So we will understand first the definition of bank reconciliation statement और उसके बाद क्या होता है, क्या कॉजेस है कि ये डिफरेंसेस होता है इन द बैलेंसेस ऑफ द पासबुक एंड एज पर द बैलेंस ऑफ द कैश बुक. और इस पूरे चीज़ को, इस पूरे अब तक जो भी हमने डिस्कस करेंगे ना, उसको हम एक बेसिक एक इलस्ट्रेशन मैं लूँगी, एक एग्जाम्पल एग्जाम लूँगी मैं, उसमें हम इसको समझेंगे. एकदम पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन में आपको ये कॉन्सेप्ट BRS का क्लियर हो जाएगा. ओके, सो लेट अस बिगिन देन. व्हाट इज ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट? Now, bank reconciliation statement is a statement which is prepared mainly to reconcile the difference between the bank balance shown by the cash book and bank passbook. The main causes of difference in the cash book and the passbook are as under. Number 1, checks issued but not presented for payment. Number 2, checks deposited into the bank for collection but not yet collected. Number 3, interest allowed by the bank. Number 4, bank charges and commission charged by the bank. Number 5, interest on investment and dividend collected by bank. Number 6, direct payment made by the bank. And number 7, direct payment into bank by a customer. These are some of the main reasons why there is difference in the cash book and passbook. हम और भी differences को समझेंगे in the upcoming videos, but ये जो मैंने डिफरेंस अभी बताया है ये मेन कॉजेस हैं. तो अभी एक ऐसे इलस्ट्रेशन लेंगे, एक सम लेते हैं जिससे कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा. ABC कंपनी लिमिटेड इज हैविंग ए करेंट अकाउंट इन SBI मेन ब्रांच कोलकाता. ऑन 31st March 21 it was seen that bank balance as per cash book and passbook did not tally. On scrutiny, it was seen as under. A check of rupees 10,000 issued on 29th March 21 but not yet cleared and paid by bank. B, a check of other bank of rupees 12,000 deposited into bank for collection on 30th March 21 but not yet collected. C, bank charges for rupees 1,000 debited by the bank. Next, dividend received by the bank rupees 5,000. Now it is given that bank balance as per cash book on 31st March 21 was rupees 1 lakh. Now we are asked to prepare BRS. क्या करेंगे हम कि पहले हमें ये देखेंगे हमें कौन सा बैंक बैलेंस एज पर हमें क्या दिया गया है. तो हमें बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया गया था, दैट इज़ 1 lakh. तो वी आर स्टैंडिंग एट कैश बुक, वी विल सी पासबुक. दूसरी तरफ पासबुक को देखेंगे. अगर पासबुक में बैलेंस अगर बढ़ा हुआ है तो हमें भी बढ़ाना पड़ेगा, और अगर पासबुक में बैलेंस अगर घटा हुआ है तो हमें भी घटाना पड़ेगा. यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना लिया है कि इन द बुक्स ऑफ ABC कंपनी लिमिटेड बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 21. क्वेश्चन से देखकर हमने लिख लिया, फिर फॉर्मेट बना लिया. ठीक है, 2 कॉलम्स बनाएंगे, एक डिटेल वाला कॉलम, एक फाइनल अमाउंट कॉलम. सो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 1 lakh. सबसे पहले जो हमें बढ़ाना पड़ेगा हम एक बार में हमें इसे ऐड कर देंगे, और जो हमें घटाना है उसे हम एक साथ लेस करेंगे. ठीक है, तो ऐड में पहले देखेंगे कि
एक था कि चेक इशू किया गया है बट नॉट येट पेड बाय द बैंक। मतलब क्या है कि हमने एक चेक तो इशू कर दिया, सो हमने क्या किया है कि हमारे कैश बुक से हमने इसको घटाया हुआ है, बट पासबुक में अभी तक ये पे नहीं हुआ है बाय द बैंक। तो पासबुक में जो बैलेंस है अभी भी बढ़ा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी बढ़ाना पड़ेगा। सो एट, तो चेक इशूड बट नॉट येट पेड बाय द बैंक 10,000 ऐड करेंगे। दूसरा, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक। तो बैंक में कुछ एक डिविडेंड है, डायरेक्टली बैंक में आके जमा हो गया, ठीक है, बट हमारे कैश बुक में, फर्म के कैश बुक में अभी तक इसका कोई इफेक्ट नहीं है, बट बैंक में जो बैलेंस है वो बढ़ चुका है। तो बैंक में बढ़ा हुआ है, सो वी ऑल्सो हैव टू इंक्रीज, हमें भी इसे बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने ऐड कर दिया 5,000, ठीक है। सो टोटल हो गया 15,000, 1 लाख के साथ 15,000 ऐड करेंगे, टोटल हो गया 1,15,000। दूसरी तरफ लेस वाले साइड में सबसे पहले एक था कि चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड। तो हमें कोई चेक मिला, हमने बैंक में इसको चेक जमा कर दिया, बट बैंक में अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, नॉट येट कलेक्टेड। सो बैंक में अभी क्या है, बैंक में सीन है कि ये अभी भी घटा हुआ है बैंक में अमाउंट, तो हम भी कैश बुक में इसको घटा देंगे 12,000। नेक्स्ट है कि बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। तो बैंक ने ऑलरेडी कुछ चार्जेस के लिए बैंक ने घटा दिया है, अमाउंट ऑलरेडी डेबिट कर चुका है। तो बैंक बैलेंस क्या है, पासबुक में ऑलरेडी घट गया है, तो हमें भी इसे घटाना पड़ेगा। तो 12,000 और 1,000 टोटल हो गया 13,000। इसे माइनस करेंगे, 1,15,000 से 13,000 माइनस करेंगे तो आ गया 1,02,000। सो दिस इज योर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक।